Hello, good morning students. As you know that we are studying models verbs. This is second lecture of model verbs. In previous videos we have deeply explained about what is model verbs, what is different between helping verb and model verbs, and what is the function of model verb. Also we tell you that different between auxiliary verb and modal verb. So today we are going to explain one by one each modal verbs. First of all, we have to know that modals verb. First of all, we have to know that we try to understand what is modal verbs. First of all, you know that modal verbs in previous videos I explained about modal verb. Just express fear, desire, advice, wish, like that. It means in Hindi we can say that man ki baat. I explained about in previous video. So today we are going to express one by one each. So today use of can. Can is used capacity, ability, and power. Every modal express different thoughts and different meaning. Can used for capacity, ability, and power. I can speak English. मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ. It means that I am able to speak English. I am able to speak English. यानी मेरे अंदर ये एबिलिटी है, मेरे अंदर ये योग्यता है कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ. He can solve this puzzle. वो इस पजल को सॉल्व कर सकता है. It means he has capacity to solve this puzzle. यानी उसके अंदर वो सक्षम है, उसके अंदर की क्षमता है कि वो इस पजल को सॉल्व कर सकता है. It means ability, capacity. I can lift 100 kg. It means that I have power to lift 100 kg. यानी मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं 100 किलो उठा सकता हूँ. It's mean
can express capacity, ability, and power. I can speak English. It means that I have capacity, I have ability to speak English. He can solve this puzzle. It means that he has capacity to solve this puzzle. I can lift 100 kg. It means that I have power to lift 100 kg. I can jump from this building. It means I have power to jump this building. मेरे पास इतनी ताकत है या फिर मेरे पास इतनी क्षमता है कि मैं इस बिल्डिंग से भी कूद सकता हूँ. यूज का पहला यूज कैन का पहला यूज क्या था? कैपेसिटी, एबिलिटी एंड पावर. और दूसरा यूज क्या है? परमिशन. लेकिन परमिशन कैसा होना चाहिए? इनफॉर्मल मैनर और फ्रेंडली. परमिशन के लिए मे भी यूज होता है, मगर मे क्या है? वो फॉर्मल है, विथ रिस्पेक्ट है. बट हियर आई एम यूजिंग ऑफ कैन फॉर परमिशन as a informal manner or friendly. Let's see one example. Can I sit with you? क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ? It means that जब आप अपने किसी दोस्त से बात करेंगे तो उससे आप विथ रिस्पेक्ट नहीं करते, आप क्या करते हैं? फ्रेंडली बिहेव करते हैं, फ्रेंडली टॉक करते हैं. तो आप जब भी अपने दोस्त से करेंगे या अपने ऐसे छोटे से कहेंगे तो आप वहां पर कैन लगाएंगे. कैन आई सिट विद यू? Can I see your diary? आप अपने दोस्त से कहेंगे when you speak, when you talk your friend, just you don't need to use name. You talk in informal or friendly behavior. So can I see your diary? So then your friend said yes. Yes, you can sit with me. हाँ, आप मेरे साथ बैठ सकते हैं. It is talking just a friendly or informal manner. Next I will see use of could.
पहला क्या है इसका, पास्ट ऑफ कैन। कुड क्या है, इट इज जस्ट पास्ट ऑफ कैन। He said, I can help you. He said that I, फर्स्ट पर्सन है वो किसके साथ चेंज होगा, he. Now can converted into could because reporting verb also past tense. He could help you. You किसके साथ चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के साथ से. He said, बट यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है. जब कहीं पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहता और रिपोर्टेड स्पीच में यू आ जाता है तो वहां हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन. यहाँ हम लोग कुछ भी मान सकते हैं. He said to me, वो मुझसे कहा. He said to me, मुझसे कहा. तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं मुझसे. तो मान लीजिए यू किसके साथ चेंज होगा, मी. तो क्या हो जाएगा, me. So it's mean that can become could in indirect speech. Same like that as we use can, capacity, ability and power. But could also use same like that but in past. I could ride bicycle in 4th standard. जब मैं 4 क्लास में था तभी मैं क्या करता था, साइकिल चला लेता था. तो ये क्या हो सकता है, आपके अंदर ये कैपेसिटी हो सकती है कि मैं जब 4 क्लास में था तभी मैं साइकिल चला सकता था. बट यहाँ पे could लगा है, we use could. It means that it shows the past of can. When I was young, I could lift bike. जब मैं यंग था तो मैं बाइक को भी उठा सकता था. It shows that past. Same express same meaning as express can, but it only past. जब मैं यंग था तो मैं क्या कर सकता था कि बाइक को उठा लेता था.
My son read the newspaper when he was 6 years old. मेरा जो सन है वो 6 साल में ही न्यूज़पेपर पढ़ने में सक्षम हो गया था। उसके अंदर ये कैपेसिटी थी कि वो 6 ईयर में ही न्यूज़पेपर पढ़ सकता है। थर्ड यूज क्या है? थर्ड यूज ऑफ कुड। polite request। Could I take your bike? क्या मैं आपकी बाइक ले सकता हूं? यहाँ हम लोग कैन भी लगा सकते थे। कैन क्या होता है? वो एक फ्रेंडली होता है, वो एक इनफॉर्मल तरीका होता है, उसमें रेस्पेक्ट नहीं होता जिसे हम लोग दोस्तों में बात करते हैं। मगर जब कोई चीज when you take something you say very politely, बहुत ही विनम्रता से आप कोई चीज अगर आपको मांगना है तो बहुत विनम्रता से मांगते हैं कि ये कहते हैं हमको दे दीजिए। आप कहेंगे भैया मैं आपकी बाइक ले सकता हूँ, बहुत ही रिक्वेस्ट, बहुत ही पोलाइटनेस से कहते हैं। तो कुड आई टेक योर बाइक? मेहरबानी करके आप मुझे बाइक दे सकते हैं। यहाँ कुड का मतलब है वेरी पोलाइटनेस, बहुत ही रिक्वेस्ट। ठीक, Could you help me? मेहरबानी करके क्या आप मेरी मदद करेंगे या कर सकते हैं? यहाँ हम लोग कैन भी लगा सकते थे, मगर कैन का जो मीनिंग होता है क्या होता है? आप मेरी मदद कीजिए, मतलब एक फ्रेंडली टॉकिंग, एक इनफॉर्मल मैनर। बट व्हेन वी यूज कुड इट्स मीनिंग दैट वी टॉक वेरी पोलाइटली, हम बहुत ही विनम्रता से बात कर रहे हैं। Could I see your diary? कृपया करके क्या आप मुझे अपनी डायरी दिखा सकते हैं? बहुत वेरी पोलाइटनेस मैनर, हम बहुत ही विनम्रता से पूछ रहे हैं कि क्या आप हमें अपनी डायरी दिखा सकते हैं। यहाँ हम लोग कैन लगा देते तो क्या होता कि आप मुझे अपनी डायरी दिखाइए। इसमें कोई विनम्रता, देयर इज नो पोलाइटनेस इन दिस सेंटेंस, बट व्हेन वी यूज कुड इट्स मीन वी से वेरी पोलाइटनेस मैनर, वेरी क्या कहते हैं? वेरी politeness manner. So could I see your diary? So this is the use of can and also use of could. Next video I will discuss use of may, might, shall, should, need, dare, lots of modal verbs. So thanks to see my video.